जनाब मैं अब्दुल रशीद साहब NNC न्यूज़ चीफ ब्यूरो वो तर्जुमान वेस्ट जोन पुलिस डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि वो तेलुगु के बेहतरीन मुक़र्रिर हैं और बेहतरीन जो है आपके प्लेबैक सिंगर भी रह चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఒక దయ వలన, ఆ కరుణామయుడు కరుణించిన వలన అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఈరోజు మీ ముందుకు వస్తానికి ఆ అవకాశం ఇప్పించినందుకు ఆ అల్లాహ్ చాలా ధన్యవాదాలు నేను హృదయపూర్వకంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా మన సయ్యద్ సిద్దిక్ హుసేన్ సాహబ్ గారు ఖిబ్లా గారు, ఇంకా స్టేజ్ మీద ఉన్న గౌరవం లేని వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. मुख्तसर जो बात थी हमारे खिबला सिद्दीकी साहब ने बता दिया. 2002 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ की जनाजे की तड़प ने, माँ की मोहब्बत की तड़प ने अल्लाह ने नबी के चेहरे वाले को बना दिया. तो माँ की जो तड़प होती है, मैं मुख्तसर 1-2 मिनट उर्दू में भी बोल देता हूं, कहीं ये ना समझे कि कंप्लीट तेलुगु है. तो इंसान जिस चीज से दिल लगाता है, चाहे वो तेलुगु हो, अरबी हो, फ्रेंच हो, फारसी हो, दिल लगाने पे हर चीज अल्लाह पाक हासिल करा देते हैं. मैंने दुनिया में दिल लगाया, अल्लाह ने मुझे दुनिया की शोहरत दी. 2002 में जब मेरी साई मूवी राजमौली के साथ साइन हुई थी, शौहते रमजान का वक्त था. सहरी के बाद मेरी अचानक वालदा को, मेरी मां को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ. तो उस वक्त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यानी मैं इस बात से यह बताना चाहता हूं, जो नौजवान तबका यहां पर है और बुजुर्ग भाई भी मौजूद है, एक औरत के सपोर्ट के बगैर ना वो दीन में मुकम्मल है, ना दुनिया में मुकम्मल है. एक मां के सपोर्ट के बगैर ना एक बेटा मुकम्मल है, ना उसकी औलाद मुकम्मल है. 2002 में मैंने जो साइन की थी मूवी, उस वक्त में मेरे मरहूम वालदा चौथे रमजान की सहरी के बाद अल्लाह ने रूह कब्ज कर ली. मेरी पूरी जिंदगी जो गुजरी बचपन से, मां के हाथ के बगैर खाना मैंने कभी नहीं खाया. जिस वक्त मेरी मां का इंतकाल हुआ, जब मेरी एक मूवी आखिरी चल रही थी, सहरी का वक्त भी था घर पे, तो उस वक्त में मैंने, उस वक्त से लेकर मेरे दिल का सुकून खत्म हो चुका था. यानी गनीमत मानो जिनकी माएं मौजूद हैं, जिनकी बहनें मौजूद है, जिनकी बीवी मौजूद है, वो दुनिया में एक जन्नत के अंदर ही है. बस लेके चलने का ढंग मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो. ఆ తర్వాత 2002 తర్వాత అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా 2002 తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీ, అమ్మ నా తల్లి చనిపోయిన తర్వాత అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా నన్ను, కనీసం నేను 6 నెలలు నా రూమ్లో లాక్ వేసుకుని ఉన్నాను. 6 నెలల వరకు బయటికి రాలేదు. ఎవ్రీ వీక్ డైరెక్టర్, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు, వచ్చి చెప్పేవారు, సార్ మీ షెడ్యూల్ రెడీ అయింది, ఇప్పుడు మీ షూటింగ్ ఉంది, ఎప్పుడు వస్తారు. నా మనసు అనేది భూలోకం నుంచి విరక్తి పుట్టింది తల్లిపోయిన తర్వాత. ఎవరైతే తల్లిలు దేవుడు మనకి ఇంకా భూలోకంలో ఉంచాడో వాళ్ళు చాలా అదృష్టకర వాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర కోట్లున్నా కూడా వేస్ట్, తల్లి లేకుంటే జీవితమే శుద్ధ. అందుకే ఈరోజు పెద్దోళ్ళు అంటూ ఉంటారు, ఒక మనిషికి జ్వరం వస్తే ఏం చేస్తామండి? ఎవరైనా చెప్పండి, తెలుగు అర్థమైంది కదా అందరికీ?
ఒక మనిషికి జ్వరం వస్తే ఏం చేస్తాం? జ్వరం వస్తే ఏం చేస్తాం? ఒక టాబ్లెట్ తీసుకుంటాం. ఆ టాబ్లెట్ చిన్నది ఎంత ఉంటుంది? కిतना रहता टैबलेट? बिल्कुल छोटा सा. पैरासिटामॉल, सेराडॉन या डोलो कुछ भी ఏదైనా. ఆ టాబ్లెట్, ఇంత టాబ్లెట్ ఒక మనిషి నోట్లో వేసుకుంటాడు. మనిషి నోట్లో వేసుకుంటాడు. లోపలున్న రోగాన్ని ఆ ఇంత టాబ్లెట్ బయటికి తీసేసిద్ది. కేవలం ఇంతే టాబ్లెట్, చిన్న టాబ్లెట్. ఒక చిన్న టాబ్లెట్ మనిషి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత లోపలున్న ఆ గుణాలు, ఆ రోగాల్ని క్యూర్ చేసి మనిషిని మళ్ళీ ఆ రికవరీ మీద తెస్తాగానే ఆ ఫేస్ రీడింగ్ తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు మంచిగా అనిపిస్తున్నావు. कभी अक्सर होता तबीयत किसी की खराब है तो आपकी तबीयत खराब है क्या? चेहरा उतरा हुआ है एकदम, आपके चलने में भी ज़ौफ पना, कमजोरी पना है. ఆరోగ్యం బాలేకుంటే వాళ్ళ ఫేస్ మీదే తెలిసిపోయింది. ఎలా అంటే ఆరోగ్యం టెస్ట్ చేస్తానికి థర్మామీటర్ ఎలా చూపించిద్దో అలాగే మనిషి ఒక నడిచే పద్ధతి, మాట్లాడే పద్ధతి కూడా మారిపోయింది. ఇంత చిన్న టాబ్లెట్ మనిషి లోపలేసుకున్న తర్వాత మనిషి రోగానికి దూరం అయిపోయింది. మనం పుట్టినప్పటి నుంచి లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్ క్యాప్సల్ లోపలేసుకున్నాం, కానీ మనిషి ఆకారం ఇప్పటి వరకు మారట్లేదు. ఒక టాబ్లెట్ మారుస్తూగలుగుతుంది. ఒక చిన్న టాబ్లెట్ మనిషి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనిషి రోగాన్ని తగ్గిస్తుంది. కానీ లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మదుర్ రసూలుల్లాహ్ పుట్టినప్పుడు ఆ క్యాప్సల్ ప్రతి ఒక తల్లి ద్వారా కానీ ఒక మౌలానా ద్వారా కానీ ఆ క్యాప్సల్ ప్రతి ఒక ఇస్లాం ఒక ధర్మంలో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ మనసు లోపల ఆ క్యాప్సల్ వేశారు. కానీ ఆ క్యాప్సల్ లోపలికి వెళ్ళి బయటికి ప్రవక్త చేయలేకపోతుంది. तो इसलिए कहावत भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ईमान दिखा नहीं सकता, ईमान दिखा नहीं सकता, मोहम्मद छुपा नहीं सकता. ला इलाहा इल्लल्लाह दिल के अंदर कितना ईमान है दिखा नहीं सकता, पर मोहम्मद को मैं छुपा नहीं सकता, अपने आप जाहिर हो जाएगा. जब दिल में सही तौर पर మనసు లోపల 100% మనసులో మీరు ఆ లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మదుర్ రసూలుల్లాహ్ని ఎలా మీరు ఒక మాత్ర వేసుకుని ఒక మీకు నమ్మకం ఉందో ఈ మాత్ర ద్వారా నా మనసుకి నా హెల్త్కి క్యూర్ అయిద్దనే, అలాగే ఒక ఇస్లాంలో ప్రవక్త ఒక ఉమ్మతులో పుట్టిన ఒక ప్రతి వాళ్ళకి ఈ ఒక నమ్మకం ఉండాలి. ఈ క్యాప్సల్ లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్ క్యాప్సల్ లోపల మనకు పుట్టినప్పటి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి, పుట్టిన తర్వాత మనకు నేర్పించారు కాబట్టి ఆ క్యాప్సల్ హక్కు అయింది, దాని అర్హత అయింది. దాని అర్హత కూడా మనం దేవుడు మనకు ఎందుకు పంపించాడు? అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా భూలోకానికి ఎందుకు పంపించాడు? ఒక లక్ష్యం ఇచ్చి పంపించాడు. లక్ష్యం లేనిది జీవితం లేదు. లక్ష్యం లేనిది జీవితం లేదు. జీవితం అనేది లక్ష్యమే. ఆ లక్ష్యం ఏంది? అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనకు ఏ లక్ష్యం ఇచ్చి పంపించాడు? చనిపోతే దేశంలో భూలోకంలో ఎన్నో భాషలు కావచ్చు, ఎన్నో మాటలు రావచ్చు. 120 భాషలు డిఫరెంట్ భాషలు భూలోకంలో ఉన్నాయి, ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. కానీ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా కరుణామయుడు. 120 భాషలు నేర్చుకున్న వాళ్ళు, 120 భాష దేశం వాళ్ళు ఒక ప్లేస్లో నిలబడి, ఒక గ్రౌండ్లో నిలబడి, ఒక సెకండ్లో వాళ్ళు మనసులో 120 భాషలు కోరుకున్న ఆ కరుణామయుడు అదే సెకండ్లో అందరు మనసుని మాటలు విని అందరికీ కరుణిస్తాడు. వాడు అల్లాహ్. क्या है अल्लाह की जात? एक ही लम्हे में अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई, हजरत आदम से लेकर क़यामत तक के आखिरी इंसान तक और चरीन परीन समंदर के सारे जितने भी मखलूक हो, जानवर जितने मखलूक हो, जंगल के सारे मखलूक और जितने अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जितने फरिश्तों को दुनिया में भेजा,
जितने अंबियाओं को दुनिया में भेजा, ये सब एक कतार में खड़े हो जाए और सब एक लम्हे में दुआ करे, मेरे अल्लाह की कसम, एक सेकंड में सबकी सुनता है और सबको अता करता है। अल्लाह के मांगने के लिए ఆ కరుణామయుడితో కోరుకుంటానికి భాష అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆ కరుణామయుడికి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలాకి మనసులో పుట్టే మాట కూడా ముందే అర్థమైపోయింది. मेरे उस्ताद मुफ्ती मुजाहिद साहब एक मिसाल देकर समझाए, वाहुस्सिल माफी सुदूर, ये आयत मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई. इसका मफहूम उलमा इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह दिलों के भेद को जानता है. किसके? दिलों के भेद को जानता है. अब यहां पर मुख्तलिफ दिलों में ख्यालात अलग होंगे, पर अल्लाह सारे ख्यालात को जानता है. तो इसी तरह मिसाल देकर समझाए, एक प्लेन होता है एयरबस, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन होता है, सबसे ज्यादा पैसेंजर्स उसमें आते हैं. एयरबस जब क्रैश होता है तो एयरबस जो है जहां पर भी समंदर में गिर गया, चाहे आग लग गई या सारा जर्रा यानी पूरा आग लगकर तहस नहस हो गया, उसके बावजूद जो एरोप्लेन की जो स्पेशल टीम होती है, वो टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है. उस प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है. वो का ब्लैक बॉक्स అని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్రతి ప్లేన్ లో ఉంటది. उस प्लेन के अंदर वो लोग पैसेंजर्स को ढूंढने का काम नहीं करते, प्लेन के पार्ट्स को ढूंढने का काम नहीं करते, वो लोग उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढने का काम करते, चाहे उसके लिए एक महीना लग जाए, अरबों और खरबों मिलियन डॉलर्स लग जाए. बात गौर से सुनिए, अल्लाह हम सबको समझा देगा मकसद क्या है कहने का. जब वो ब्लैक बॉक्स मिलता है, ब्लैक बॉक्स की खूबी होती है, ना वो गलता है, ना वो जलता है, ना वो पिघलता है. तो जब ब्लैक बॉक्स को एक्सपर्ट्स जब निकाल कर लाते हैं समंदर से या आग से, तो अपने लैब में लेकर जाकर एक लेजर कटिंग से उसको कट करते हैं ब्लैक बॉक्स को. और उस ब्लैक बॉक्स को कट करने के बाद पायलट ने क्या गलती की कहने की जरूरत नहीं है, पैसेंजर की गलती क्या हुई कहने की जरूरत नहीं है. वहां पर यह आयत है, वहुस्सिल मा फी सुदूर. अल्लाह दिलों के भेद को जिस तरह जानता है, ब्लैक बॉक्स के अंदर सारी हवाई जहाज का, प्लेन का, किसका फॉल्ट है, सब रिकॉर्ड होकर रहता उसके अंदर. हर लम्हा हमारा, पलक झपकने तक का जिंदगी का लम्हा हमारा, अल्लाह हमसे हिसाब लेगा. एक मर्तबा दरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जन्नत में यह दर्जे बुलंद करने वाली चीज है. భూలోకంలో వచ్చిన తర్వాత మన కర్తవ్యం ఏమిటి? కేవలం పిల్లల్ని పోషించటం, భార్య పిల్లల్ని పోషించటం, కాన్వెంట్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివించటం, మనం పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టి మేడల్లో ఉండటం, పెద్ద పెద్ద కార్లో తిరగటం, ఇదే నా లక్ష్యం కాదు. అల్లాహ్ నాకు ఆ లక్ష్యం ఇచ్చాడు, కార్లో తిరిగే అవకాశం ఇచ్చాడు. కాలనీస్లోకి వెళ్తే సిగ్నేచర్ ఆటోగ్రాఫ్ కోసం 100 మంది వచ్చేవాళ్ళు, ఆ అవకాశం ఇచ్చాడు. కానీ నా ప్రవక్త గురించి తెలిసిన తర్వాత భూలోకం నాకు వేస్ట్ అనిపించింది. जब नबी का चेहरा, नबी के चेहरे का गुमान खुदा की कसम इस दिल में है, तो अल्लाह ने दुनिया को ठोकर मारने लगा दी. किस तरह से? मेरे उस्ताद एक मिसाल देकर समझाते. ईमान सीखो तो मुकम्मल करो, पढ़ाई करो तो मुकम्मल करो, अधूरे में मत छोड़ना, वरना फितने में पड़ जाओगे. जब अधूरा इल्म हो जाएगा तो फितने में चले जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा. ఒక ప్లేస్లో నిలబడటానికి కష్టమైపోయింది, ఒక ప్లేస్లో నిలబడలేడు. तो इसलिए मुकम्मल बनाओ, ईमान बनाओ, मुकम्मल बनाओ.
नबी को दिल में उतारो तो मुकम्मल उतारो, चेहरा गुमान करो मेरे आका का, खुदा की कसम जियारत हो जाएगी। जिसे जियारत हो जाए उसके तो वारे निवारे हो जाए। तो मेरे उस्ताद एक अक्सर मिसाल देकर बताते, मैं तेलुगु में बोलता हूं, तेलुगु तो सबको समझ में भी आती है, ये मिसाल भी తెలుగు में ही अल्लाह पाक दिल के अंदर उतारे। మనం ఒక రాయి తీసుకొని కొట్టుకుంటే తల మీద ఏం జరిగిద్దండి? అనిల్ గారు ఏం జరిగిద్ది? అనిల్ గారు ఉన్నారా? ఒక రాయి తీసుకొని తల మీద కొట్టుకుంటే ఏమైద్ది? भाई कोई तो जवाब दे सकते। ఏమైద్ది? రాయి తీసుకొని తల మీద కొట్టుకుంటే రాయి పగిలిద్దా, తల పగిలిద్దా? తల పగిలిద్ది। తర్వాత ఏమైద్ది? రక్తం వస్తుంది। రాయకా మనకా? మనకే। సరే ఒక పని చేద్దాం, రాయి ఆ చెట్టు దగ్గర పెట్టుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి గుద్దుకున్నాం, అప్పుడు ఏం జరిగిద్ది? అప్పుడు కూడా తలే పగిలిద్ది। రాళ్లకి మట్టికి పూజించే వాళ్ళకి రెండు వైపు నుంచి మనిషికే బొక్కలు గాని రాళ్లకి కాదు। बात समझ में आई मेरी? समझ में आई भाई? ईमान बढ़ाने वाली बात है। ఆ పుట్టించిన కరుణామయుడు ఎవడు అని తెలుసుకున్న దానికి అర్థం దీనికి ఒక లక్ష్యం ఉంది। భూలోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ దేవుడు లక్ష్యం ఇచ్చి పంపించాడు, ఆ లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయాలి। భూలోకంలో ఉన్న పనులు ఒక హలాల్ తౌరుతో మనం సంపాదిస్తూ, కేవలం వాడు అడుక్కునేవాడైనా ఉండని, కానీ వాడు లోపల అల్లాహ్ ఒక ప్రవక్త ఉండి హలాల్ తరీఖ నుంచి సంపాదిస్తూ భార్య పిల్లల్ని పోషిస్తే, వాడు ఒక అల్లాహ్ ఒక ఇబాదత్ చేసుకుంటే చాలు, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఇహలోకంలో కూడా పరలోకంలో కూడా స్వర్గం లభిస్తాడు। तो आप सबसे मेरी, जब तक अल्लाह सांस रखा, मैं हमारे सिद्दीकी साहब से फिर से मैं माफी का तलबगार हूं, और आप सबका भी, क्योंकि 2 साल से पर्ची पे मेरा नाम आ रहा था, कुछ मसरूफियात की वजह से, कुछ दूसरे प्रोग्रामों की वजह से मैं आप तक नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि अंजुमन को जाना है। आज तुझे जाना है, अल्लाह ने दिल में डाला, हमारे खिबला ने फोन किया, लब्बैक कहकर पहुंच गया। दूसरा प्रोग्राम है, मैंने कहा बाद में जाऊंगा वहां पर। तो ये जो है अंजुमन की खुवत है, ये आपकी एकता की खुवत है, ये आपकी ईमान की कैफियत है, जो जिसे याद करे अल्लाह उसे खींच कर लाकर बिठा दे। आप कमजोर लोग नहीं हैं। ऐ अंजुमन वालों सुन लो, आज अल्लाह वालों हो तुम, झोले वाले अल्लाह वालों हो तुम, जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है, अल्लाह के नबी पसंद फरमाते हैं। आज उसी अल्लाह ने भेज दिया मुझे भी, जाओ खिबला के पास। तो ये मेरे अल्लाह का फजल है। अल्लाहु अकबर, जोर से बोलिए एक बार तकबीर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आखिरी, खिबला साहब इजाजत देते हो 1-2 मिनट और, क्योंकि बड़ों की तरतीब से हटना नहीं है। बड़ों की तरतीब पे जो जमा, अल्लाह उसे जमा देगा, बड़ों की तरतीब से हटा, अल्लाह उसे हटा देगा। तो बगैर मां के हाथ के लुक़मे खाने वाला, नहीं खाने वाला, जब मां का इंतकाल हुआ तो पता चला मां क्या चीज होती है। मेरे 22-23 साल की उम्र में जब अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी,
मैं और राजमौली दोनों एक साथ फिल्म इंडस्ट्री में आए और हमारा कैरियर एज ए एक्टर शांति निवासम सीरियल से हुआ। राजमौली का पहला डायरेक्शन है शांति निवासम सीरियल। उसके बाद पहली मूवी मेरी और जूनियर एनटीआर की स्टूडेंट नंबर 1। तो अल्लाह आखिरी मूवी सही फिल्म के वक्त जब मेरे मां का इंतकाल हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूं, फिल्म के चर्चे इसलिए कर रहा हूं कि मेरे अल्लाह की कसम वो कुछ नहीं है, नबी का चेहरा सब कुछ है। जो एनटी रामाराव था, नंदमूरी तारक रामाराव, जिसकी मजार आज भी है नेकलेस रोड पे, मरने के बाद संदल के भले लकड़ी पे हो, लकड़ी पे जलाया गया, संदल की हो चाहे कौन सी भी हो, अल्लाह ने ऐसी उम्मत में पैदा किया कि खबर का अजाब पोशाइदा होगा, खबर के अंदर बंद होकर होगा, और जिसके अंदर ईमान नहीं होगा, अल्लाह दुनिया में दिखा रहा है कि हम जमीन के ऊपर अजाब शुरू कर देंगे। ये मिसालें हैं अल्लाह की, ये अल्लाह का एहसान है उम्मत पर, मेरे आका पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि उनके उम्मती पैदा होना दुनिया का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बेटा भी होना बेकार है। मेरे नबी का उम्मती होना आला से आला शान है। मेरे नबी की उम्मती बनकर आना, एक दिन अल्लाह जरूर जन्नत में भेजेगा। यह उम्मीद हमेशा रखना, उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, नमाज छूट जाए, इस्तगफार कर लेना, सदका कर देना, लेकिन अल्लाह से बदगुमानी कभी मत करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है हदीस के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जमीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर दो। जमीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर दो, उसके अंदर शिर्क शामिल ना हो। ऐ फरिश्तों, गवाह है ना, मैं मेरे सारे बंदों की गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। अल्लाह की सिफत में सबसे बड़ी सिफत है माफ करना। अल्लाह माफ कर रहा है, इसीलिए तो हम नबी की उम्मती बनकर आए, वरना हमारे कैसे जो से भी गुनाहें हो, अल्लाह हमें हिफाजत में रखा। कौम जहालत के दौर पर जिसके घर पे गुनाह होता, अल्लाह की कसम उसके दरवाजे पर लिखा जाता था, ये फलाना गुनाहगार है। इससे बड़ी उम्मत और कौन सी हो सकती है? सबसे आखिर में आई, मेरे अल्लाह की कसम सबसे पहले जन्नत में जाएगी। अंदरी कन्ना మా ప్రవక్త గారు చివరి ప్రవక్త. ఆ ప్రవక్త తర్వాత ఏ ప్రవక్త భూలోకానికి రారు, చివరికి వచ్చారు, చివరికి వచ్చిన ఉమ్మతి, కానీ అందరికన్నా ముందుకెళ్లే ఒక జన్నతి। बात समझ में आ रही भाई? क्या है कि मैं, देखो मैं ठहरा जाहिल इंसान, बस अल्लाह समझा दे आपको मेरी बात। अल्लाह दिलों में ऐसे समझा दे जिस तरह से एक तीर मारकर दिल के अंदर धस जाता है। खुदा की कसम, उसके कलाम पाक की बात, मेरे नबी के सीरत की बात, उम्मुल मोमिनों की माओं की तरीके की बात, मेरे अल्लाह की वहदानियत की बात मेरे माओं के दिल में, मेरे भाइयों के दिल में, उलमाए कराम के दिल में, सारी उम्मत के दिल में ऐसे धसा दे, गोश गोश में, हड्डी हड्डी में, आजू आजू में, नस नस में, ऐ अल्लाह तेरे दीन को दाखिल फरमा दे। आमीन कहो भाई। सहाबा का जब खून जमीन पर गिरता तो उस खून के खतरे से आवाज सुना करते थे सहाबा, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह जज्बा था।
भाई हम लोग वो नहीं है मन्नू सलवा जन्नत से खाने उतार के खाने वाले, इतने सस्ते लोग नहीं है हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है, हम ईसा की कौम नहीं है, हम मूसा की वो कौम नहीं है जो अल्लाह के ऊपर बदगुमानी कर कर अल्लाह से जन्नत से मन्नू सलवा उतार कर खाए। हम मन्नू सलवा के मोहताज नहीं हैं, हम उस ताजदारे हरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। अल्लाह का वादा इस उम्मत पर है। कल मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कल अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जब पेश किया जाएगा, कहेंगे उनकी उम्मत से मूसा की, ऐ मूसा हमने तुझे नबी बनाकर भेजा, उठा तेरी कौम को और पहचानने को कहे। वो लोग कहेंगे हम नहीं पहचानते। ईसा की कौम को कहेंगे, वो कहेंगे हम नहीं पहचानते। सदके जावा मेरे ताजदारे हरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को खड़ा किया जाएगा। कहेंगे तो उम्मत कहेगी हजरत आदम पे हम ईमान लाए, ये भी नबी थे, हजरत मूसा पे लाए, शीश पे लाए, सुलेमान पे लाए, यूनुस पे लाए, दाऊद पे लाए, ईसा पे लाए, ताजदारे हरम पे भी लाए। हम गवाही देंगे वहां। ये उम्मत होगी नबी की 124,000 कमोपेश अंबिया अलैहिस्सलाम की गवाही दे ही जाएगी। हम बहुत खुश नसीब है। ऐ अंजुमन वालों, तुम और ज्यादा खुश नसीब हो। तुम सीधे सादे रहते हो, जिस तरह अंबिया रहा करते थे, जिस तरह औलिया रहा करते थे। अल्लाह तुमको मुंतखब किया है, बस इसका हक अदा करना है। हम एक हीरा जमीन से, भाई खजाने कहां मिलते बताओ, खजाने कहां मिलते भाई? एक आध जने जवाब भी दे दिया करो। खजाने कहां मिलते? जमीन में मिलते। कहां मिलते? जमीन में। क्या बेहतरीन, सुभान अल्लाह। खजाने जमीन में मिलते। तो जमीन से जब खजाना बाहर निकाला जाएगा, खजाने कहां? जमीन में मिलते। तो उम्मत का मुसलमान खजाना है। क्या है? खजाना है। मरने के बाद उस खजाने को दफनाया जाता है जमीन पर। उम्मत, मेरे नबी का हर मुसलमान जो ईमान लाया हो, भले वो कोई भी हो, काफिर हो, भले वो ईमान ला लिया हो, जब उसे जमीन में दफनाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखा रहा है उम्मत को कि मेरे बंदे खजाने के मानी में है। मैं इन्हें जमीन से खजाना निकाला और वापस जमीन से ही मैं इनको अपने पास बुलाऊंगा। एक और बात बोलो, हम मुसलमान की अहमियत। भाई हीरे पे अगर खजाना जमीन से निकला, हीरा निकला, हीरे पे मट्टी चढ़ी हुई है, धूल है, हीरे को साफ करेंगे तो क्या हीरे की कीमत धूल रहने से कम होती? जमीन से खजाना निकलने के बाद हीरे पे धूल गरद है, मट्टी है, उसे हीरे की अहमियत कम होती? नहीं होती। खुदा की कसम, वो जितना पुराना हीरा होगा वो उतना ही कीमती होगा। हीरे पे भले कितना भी धूल आ जाए, उसे साफ करो, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मोमिन के दिल पे कितनी भी गंदगी आ जाए, उसे साफ करो अल्लाह के नाम के जरिए से, नबी के जिक्र के जरिए से, नबी के दरूद के जरिए से दिल साफ करो। हीरे की अहमियत कभी कम नहीं होती, मोमिन की अहमियत भी कभी कम नहीं होती। तो इसलिए आप सबके पास वक्त की भी बड़ी किल्लत है, एक दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है। तो मेरी खुशनसीबी है, मेरे मां बहनों से भी मैं शुक्रगुजार हूं, मेरे भाइयों दोस्तों से भी शुक्रगुजार हूं कि इस नासमझ
नालायक बंदे को अल्लाह ने इस मुकाम पर खड़ा किया, यह मेरे रब ताला का करम है और बुराने वालों का शुक्र है कि अंजुमन वाले सारे लोगों का मेरे दिल से दुआ है कि आप लोगों के दिल के हर वो जायज अरमान हाथ उठकर झुकने से पहले कबूल कर ले। जब भी मुझे बुलाया जाएगा इंशाअल्लाह, मैं आज आपके जहां से ही मैं बोल रहा हूं, एक मौत के अलावा कोई भी काम आ जाए छोड़कर आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। क्यों? तो बस आखिरी मेरी एक 10 सेकंड की बात है, अपने अपने घरों के अंदर फितने फसादों में मत पड़ो। शैतानों की जमात को जब खड़ा किया जाता है, डेली हाजिरी होती है उनकी, तो शैतानों से हाजिरी में पूछा जाता है फला फला तूने आज क्या किया? उन्हें कहता सरदार इससे चोरी करके इसके नाम पे डाल दिया, फला का निकाल के उसको कर दिया, उसको छेड़ के इसको फंसा दिया, उसको करके इसको कर दिया। तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ गुनाहों में डालने का काम करता है। तो एक लंगड़ा शैतान था, लंगड़ाते हुए आया और वो बड़ा शर्मिंदा था, सरदार से कहने लगा, शैतानों के सरदार से, तूने क्या किया? तो उसने किया, सरदार कोई बड़ा खास काम तो मैंने आज नहीं किया, बस एक बीवी को और शौहर को लड़ा दिया, बीवी को और शौहर को लड़ा दिया। तो उसने कहा तू आगे आ जा, तूने आज ऐसा काम कर दिया जो अल्लाह को सबसे नापसंद है। आज तो तेरे पूरे 100 के 100 मार्क्स है तेरे आज। तो मैं बताना यह चाहता हूं, जमीन पर जब तक अल्लाह हमें हयात रखे, एक औरत के जरिए, मर्द के जरिए इम्तिहान मौत तक होगा, यह यकीन हो। सहाबा रिजवान रजी अल्लाह ताला अन्हुम मजमाइन का दम निकल रहा था। सारे सहाबा, अशरा मुबशरा सहाबा जिसे जन्नत की बशारतें दी गई, वो भी मौजूद थे। सहाबा सकरात की हालत में है। आपस में दोस्त सहाबा कहने लगे, वाह फला बिन फला तू तो जन्नत को चले गया, फला बिन फला तू तो फना पा लिया। तो सहाबा ने कहा, कल्ला, नहीं, अभी नहीं, जब तक मेरी सांस ला इलाहा इल्लल्लाह पर बंद न हो, मैं नजात नहीं पा सकता। और हम क्या गुमान करते हैं? सहाबा की यह सोच, सहाबा का यह तवक्कुल, सहाबा का यह यकीन, सहाबा का मियार ईमान का इतना बड़ा, फिर भी मौत के वक्त यह खौफ, और हम इत्मीनान बैठे हैं। तो इसलिए मैं मेरी बहनों से जो शादीशुदा है, जो भाइयों से, उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरे काउंसलिंग्स में रोजाना 10 से 15 मुसलमान फैमिलीज को जब देखता हूं, दिल से आंसू निकल जाते हैं। शैतानी फितने के अंदर 2 चीजें लड़ने की वजह से, एक मियां बीवी के फितने फसाद जो शैतान डालता है, उस फितने फसाद की वजह से 2 खानदान पीढ़ियां लड़ते रहते हैं, और शैतान का ईमान का झंडा नीचे, शैतान का झंडा हाथ में। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं उम्मीद करता हूं इस अंजुमन वाले मेरी बहनों से और उन मेरे भाइयों से और उनके शोहरों से आज ये दिल पर हाथ रखकर कहे, जबान से इकरार ना करे, अल्लाह दिलों की भेद को जानने वाला, जो हमने शोहर के हुकूक अदा नहीं की औरत, वो दिल से तौबा कर ले इस मजलिस में। जो बीवी के हुकूक अदा नहीं कर सका, वो मेरा भाई भी दिल से तौबा कर ले, ताकि घर को जाने के बाद अल्लाह दोनों को ऐसे मिला दे जैसे जन्नत का जोड़ा अल्लाह मिला रहा हो।
जितने भी मसले मसाइल हो अपने मकान के अंदर मुकम्मल करो, रोड पर चढ़ने ना दो, बाजारों में आने ना दो। मेरे नबी की उम्मत की बहनें हैं, मेरे नबी की उम्मत के भाइयां हैं, और ये मेरे नबी के लोग हैं। हम सब नबी की उम्मती है। अल्लाह के पास हम सबको जाना है। उस मेरे आका के हाथ से जामे कौसर हम सबको पीना है, उसकी तैयारी करना है। छोटी सी है बस, 5 वक्त की नमाज पढ़ लिए, शौहर की इताअत कर लिए। मर्द के लिए अल्लाह ने मस्जिद बनाया, औरत के लिए उसका घर उसको मस्जिद बनाया, उसकी 4 दीवारी उसके लिए मस्जिद है। मैं एक आखिरी वाकया बोलकर मैं अपनी बात को समेट लेता हूं। एक अल्लाह वाले थे, एक जमात गई, हमारे अंजुमन जैसे ही कहीं एक जगह जमात चले गई, तो वहां पर एक बाप रोते हुए आया, चिल्लाते हुए आया, आकर कहने लगा, हजरत मेरी बेटी का इंतकाल हो गया और उसके ऊपर ऐसे खतरनाक कीड़े चढ़ गए, उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। तो सारे लोग हैबत जारी हो गई और सारी जमात दौड़ पड़ी। आखिर ये क्या अल्लाह का अजाब है, चलो देखें। सारे लोग दौड़ते हुए आए, देखे। देखते ही सारे अल्लाह वालों ने हाथ उठाई, कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ये तो हमने हदीस में सुना था, इस कीड़ों का नाम कान खजूरे हैं। ये जो खबर के अंदर डालने के बाद आते हैं, इसको जमीन के ऊपर से शुरू कर दिया। उसके बाद सारे अल्लाह वालों ने दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, चाहे इसके पास जो कुछ भी हो, इसे तो खबर के गड़े में डालना ही होगा। तो दुआ होने के बाद सारे कीड़े एक तरफ हो गए और बाजुक से जाने लगे, और उस बेटी को वो जमात के साथ में रहते हुए डोला उठाकर खबर तक लेकर गए, और खबर में उस बहन को डाल दिया गया, जवान लड़की को डाल दिया गया, और वापस जैसे मिट्टी डालने से पहले वापस सारे कीड़े अंदर मौजूद चले गए। फिर सारे अल्लाह वाले खड़े हुए, हाथ उठाए, फुकरा गरीब, और कहने लगे, ऐ अल्लाह मिट्टी डालने तक का सब्र कर ले, उसके बाद इसका जो अंजाम होगा, तेरी इज्जत की कसम, तेरी जलाली की कसम, बादशाह भी आ जाए इस खबर के अंदर कुछ नहीं कर सकता। ये दुआ ही करना था। कीड़े एक तरफ पैर की तरफ आ गए, उस मुर्दे को डाल दिया गया, उस बहन को डाल दिया गया, नौजवान बच्ची को डाल दिया गया। मिट्टी डालने के बाद उसके बाद ये सारे लोग चले गए, और ये अल्लाह वालों को बड़ी दिल के अंदर एक हैबत जारी हो गई थी कि आखिर इसने ऐसा क्या खता कर दिया, मैं अपनी बच्चियों की हिफाजत करूंगा अगर इसने बता दिया। तो दौड़ते हुए उसकी मां के पास गए। पहले उसके बाप से पूछा गया कि हजरत आपकी बेटी के साथ क्या मामला हुआ। उसने कहा, मैं तो सुबह गया तो रात में आने वाला, चलो इसकी मां से पूछते हैं। इसकी मां को आवाज लगाए, पर्दे के अंदर से आई, आकर कहने लगी, क्या है हजरत? तो कहने लगे, है मेरी मां, तू आज सच सच बता दे, तेरे इस बेटी के साथ क्या मामला हुआ जो अल्लाह का अजाब जमीन के नीचे का ऊपर से शुरू हो गया। तो उस मां ने कहा, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। फिर से अल्लाह वालों ने पूछा, फिर से वही जवाब, फिर से पूछा, तीसरी बार भी वही जवाब, मुझे याद नहीं है, बस कुछ खास तो नहीं है। तो अल्लाह वाले जाने लगे। मां दौड़ लगाई, कहने लगी, हजरत रुक जाओ, अल्लाह की कसम मुझे वो बात याद आ गई है। अल्लाह वाले दौड़ते हुए आए, अरे मेरी मां जल्दी से बता दे ताकि मैं अपने बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी की हिफाजत कर सकूं। जो तेरी बेटी से गलती हो गई दूसरी उम्मत की बच्ची से ना हो। तो मां कहने लगी, हजरत मगरिब की अजान हो रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी बेटी अपना मनपसंद सीरियल देख रही थी और मैंने कहा, बेटी अल्लाह की बुलंदी की आवाज लगाई जा रही है, अल्लाह बड़े हैं इसकी आवाज लगाई जा रही है, तेरी टीवी की आवाज को कम कर दे। तो उस बेटी ने कहा, मां ये मौजन का काम तो 5 बार चीखने का है, ये 5 बार चीखते रहता है, मेरा सीरियल गया तो फिर नहीं आएगा, ये अज़ान गई तो दूसरी आ जाएगी।
ये कहना ही था, उस पर अल्लाह का अजाब ढा गया। आज हम अपने घरों में भी सोचें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे नबी की उम्मत में, जो दो जहां की सरदार की शान वाली उम्मत है, कहीं मेरे नबी को शर्मिंदा ना करना पड़े कल क़यामत में। तो मेरी सारी बहनों से, उन नौजवान बच्चियों से, बच्चों से जो कॉलेज आते जाते हैं, अपने मां बाप की इज्जत को बढ़ाओ, घटाने की कभी कोशिश मत करना, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। अपने मां बाप की मानो, अल्लाह उसके रसूल की मदद तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे पढ़ाई के अंदर भी तुम्हारी नीयत यह हो कि मैं दो जहां की सरदार की उम्मत की बेटी हूं, मैं ये इल्म सीखूंगी, सारी दुनिया में पहुंचाऊंगी मेरे नबी के खिताब को। अल्लाह तुम्हारे पढ़ने को भी इबादत कर देगा। तो उम्मीद है मुझसे कि इस अंजुमन में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं हमारे सिद्दीकी साहब का, और दीगर औला इकराम का। मैं उलमा इकराम के नाम नहीं जानता हूं, मैं माफी का तलबगार हूं सबसे। सिद्दीकी साहब से हमारे दिली ताल्लुकात हैं, आपकी मोहब्बत और आप अंजुमन वालों की मोहब्बत यहां पर खींच के लाई। इंशाल्लाह जब भी प्रोग्राम होगा जरूर हाजिर होगा। आप लोग दिल से जरूर दुआ करेंगे तो ये बंदा जरूर आपके पास आएगा। और आज के बाद बस कुछ चीजें याद रखें, ईमान की रस्सी कभी नहीं छोड़ेंगे, नबी की सीरत कभी नहीं छोड़ेंगे, और नबी की बेटी फातिमा बनकर यह उम्मत की औरतें उठाई जाएगी। आज अल्लाह का एहसान है, किसी औरत के बुरखे पे पर भी पेवन नहीं मिलता, दो जहां की सरदार की बेटी के लिबास पर पेवन हुआ करता था। इससे बड़ा और क्या शुक्रगुजार करेंगे हम, बताइए। अल्लाह आज की उम्मत को, फकीर को भी बिरयानी खिलाता है। खंदक के वक्त सहाबा और मेरे आका का पेड़ भूखा था, आज इस उम्मत उसका नाम लेवा का फकीर भी बिरयानी खाता आज। तो इस बात को याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। आप सबका एहसानमंद हूं मैं। मोहब्बत से रहें, भाईचारे से रहें, चाहे कोई भी कौम हो, कोई भी फितने की बात हो, हमें सिर्फ वाहिद अल्लाह की थाम कर हमारे मशवरों के मुताबिक हमको चलना है, किसी के फितनों में हमें नहीं आना है। जिस तरह अल्लाह ने एक हाथ में 5 उंगली दी, उसी तरह से अंजुमन वाले आप सब भी, सारे खवातीन भी यहां के मशवरे के ताबे हो जाओ, अल्लाह की नुसरतें डायरेक्ट आपके घर पर आएगी इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।